Hello students, I Sushma Kataria from Suru School Bhiwadi, and today in this video we will discuss about the 11th class first chapter, The Portrait of a Lady. And as you know that in our previous video we already have discussed about the entire chapter and the all details about it, and today in this video we will discuss about the revision part of it. Clear? As you know that this chapter was written by Khushwant Singh, and in this chapter he was describing about his grandmother, and he was giving a complete detail, and because of that reason he used the word portrait of a lady. So as you know that Khushwant Singh described his grandmother. The Khushwant Singh says that his grandmother was old, that she could not get older than this. That means he was that much old that she is not able to get more older than this. Her face was full of wrinkles. She was short, fat, and somewhat bent. Okay, so it was unbelievable to imagine. That means उनको देखकर कैसे अपीयरेंस, कैसे थॉट प्रोसेस उनके माइंड में आता है कि उनको देखकर कभी लग ही नहीं सकता, वो थॉट ही नहीं आती है कि वो कभी इससे भी बूढ़ी हो सकती है, या वो कभी अपने पास्ट लाइफ में वो कभी यंग रही होंगी, या कभी वो इतनी एनर्जेटिक रही होंगी. बट शी वॉज बीइंग दैट मच ओल्डर दैट शी कैन नॉट बी ओल्डर देन this. So in this question he was describing about the appearance of her of his grandmother. So next question is, give a pan picture of her of the narrator's grandfather. Clear? So in grandfather hung in the drawing room. एक portrait जो है वो grandfather का drawing room में था, and उनका appearance, it was only once he was discussing about his grandfather, and he was having that he have a white beard, gave him a look of 100-year-old man. Clear? So in this way he was describing about his grandmother. Then this is the appearance of his grandfather, sorry. Next question, how, which is unbelievable, the thing about his grandparent which is unbelievable. उनको देखकर, सिंपल सी बात है, उनको देखकर ऐसा ही लगता है दैट वो कभी ग्रैंडफादर को देख के लगता है कि वो कभी यंग नहीं रहेंगे, उनका डायरेक्ट ग्रैंड चिल्ड्रंस ही होंगे उनके. कभी ही कैन बी एवर एनर्जेटिक, वो कभी बूढ़े होंगे या वो बच्चों की तरह खेलते होंगे. सो दीज थिंग्स आर कम्प्लीटली अनबिलीवेबल फॉर खुशवंत सिंह टू understand about the grandparents. Next question is, why did the narrator grandmother give the impression of winter landscape in the mountains? This is one of the most important question about this chapter. क्या दिखाया गया है कि वो एक यहाँ पे एक phrase use किया गया है, winter landscape in the mountains. So what is the meaning of this particular word? Whenever you saw a hill station area and you saw the mountain, the top of the mountain were filled with ice. Clear? A very soothing kind of atmosphere and very soothing feelings appear in us. So in a same way, whenever he saw his grandmother, he have the same feeling. क्लियर? अब रीज़न क्या है? बिकॉज उनका जो अपीयरेंस के बारे में अगर यहाँ पे बात करें तो ही डिस्क्राइब वाई द लैंडस्केप, और विंटर लैंडस्केप के ही उन्होंने और माउंटेन्स का ही क्यों उन्होंने जिक्र किया है. सो द आंसर इज, द ग्रैंड मदर यूज टू वेयर स्पॉटलेस वाइट क्लोथ्स. Clear? It somewhere completely resemble with ice, and silver hair, white all over her face. क्लियर? मतलब जब वो आप इमेजिन कीजिए उस इम्प्रेशन को कि अ लेडी वॉज वेयरिंग अ स्पॉटलेस वाइट साड़ी, एंड हर ग्रे लॉक्स वर स्प्रेड ऑल ओवर हर पेल फेस. क्लियर? एंड शी वॉज रिसाइट द प्रेयर ऑल द टाइम. वो हमेशा प्रेयर करते, रोजरी बीड्स को काउंट करती रहती है अपने हाथ से. तो जो इम्प्रेशन उनको देखकर लगता है, तो एक पवित्रता वाली, एक सैरेनिटी वाला जो अपीयरेंस है वो क्लियर होता है, वो दिखाई देता है ग्रैंड मदर को सोच कर देख कर. So because of that reason he compared his grandmother with winter landscape. winter landscape से I think समझ गए होंगे, winter को कहीं ना कहीं उनकी white साड़ी को snow के साथ relevant किया गया है, and because of that reason he used this phrase for his grandmother. Next question is, how did the old lady look after the narrators in the village? This is one of the most important question. In other language the question can be discussed about the routine of grandmother in
विलेज. क्लियर. सो दिस और फिर एक और क्वेश्चन, इसका सेकेंड क्वेश्चन बन सकता है, what kind of bonding grandmother and the grandson have between both of them. Okay, so the question answer is the narrator was left to the care of his grandmother in the village home when his parents went to live in the city to earn money. As you know that to earn money and to get settled down and to have better life, some persons moved towards city to have that all. एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न तो खुशवंत सिंह जो हैं वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ विलेज में ही रह जाते हैं. सो शी कम्प्लीटली डेडिकेटेड हर 24 hours टूवर्ड्स द खुशवंत सिंह, एंड द एंटायर थिंग वॉज देयर अराउंड हिम ओनली. She looked after the child and care with care and love. She bathed him, dressed him, fed him, got him to the school bag ready, and then took him to the temple school and helped the boy with his lesson. That means उनको हर तरीके से एक बच्चे को जिस तरह से किसी एक एल्डर पर्सन की हेल्प की और हर तरीके के केयर की ज़रूरत होती है, she did everything. मतलब as you can say she was 24 hours she was surrounded or the grandchildren was surrounded by his grandmother. क्लियर. उनको नहलाना धुलाना, डेली रूटीन के खाना वगैरह खिलाना, उनको स्कूल छोड़ के आना, उनके होमवर्क में उसकी हेल्प करना. सो ऑल द थिंग्स वाज डन बाय द grandmother, and that was the routine of grandmother as well in the village. Next question is, why did grandmother fed dogs and birds in the village and then in the city? What did the habit tell us about her nature? सो इनके ये जो है क्वेश्चन है एक समवेयर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. द ओल्ड लेडी वॉज केयरिंग पर्सन. उनका जो केयरिंग पर्सनैलिटी है, एक क्वेश्चन आएगा राइट डाउन द कैरेक्टर्स का. सो दिस इज वन ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट यू कैन राइट इन द कैरेक्टर. शी हैड लव फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स. क्लियर. दैट मीन्स शी वॉज अ एनिमल लवर पर्सन. एक वो केयरिंग पर्सन है, एनिमल लवर पर्सन है, तो दो कैरेक्टर ट्रेट्स आपको समझ में आ गए होंगे. शी थ्रू स्टेल चपाती टू द स्ट्रीट डॉग्स, एंड इन द सिटी शी हैड नो डॉग्स अराउंड. सिटी में कोई डॉग्स नहीं थे क्योंकि वो घर से बाहर नहीं जा सकते थे इन अ वे. सो शी बिगिन फीड लिटिल बर्ड्स इन द वरांडा ऑफ हर रूम. अपने रूम के वरांडा में तो वो बर्ड्स को फेड कराती थी. दिस शोज द अफेक्शन ऑफ हर ऑल लिविंग क्रिएचर. ये जो हैबिट है, ये कैरेक्टर हमारा समझ में आता है. शी हैव द affection, a love and a kind of thing, a feeling she have for all living creature around her. क्लियर. सो यहाँ पे एक तरह से आपको दो कैरेक्टर एलिमेंट्स ट्रेट समझ में आते हैं. एक तो केयरिंग पर्सन एंड एनिमल लवर. क्लियर. सो दिस इज द टू important traits you understand from this question. Next question is, how can you say that the grandmother was a deeply religious minded lady? This is important question. This is one of the most important question. सो किस तरह से समझ में आता है? देखो, ऑल द टाइम में बार बार एक चीज़ है, उनके जो लिप्स है वो कॉन्स्टेंटली साइलेंट प्रेयर में मूव आउट होते रहते हैं. वो उनको देखकर हमेशा ऐसा लगता है कि वो प्रेयर कर रही हैं. हर हैंड्स वर कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन द रोजरी बिन काउंटिंग. वो जैसे कहते हैं ना, रुद्राक्ष की माला को हमेशा काउंट करती रहती थी. सो दिस इज़ द वे इट सीम्स दैट जैसे वो प्रेयर करना, रुद्राक्ष की माला को करना, एंड मैक्सिमम टाइम शी स्पेंड इन हर प्रेयर. सो इनको देखकर क्लियरली समझ में आता है कि वो एक रिलीजियस लेडी है. सो सेम द थिंग वाज हाईलाइटेड बाय द राइटर इन द आंसर एज वेल. ऑल द डे लॉन्ग शी काउंटेड द बीड्स ऑफ रोजरी. क्लियर. एंड रिसाइट द प्रेयर. ओके. शी रीड स्क्रिप्चर inside the temple. She distribute to know that there is no teaching about the God. अब जब उनको डिस्टर्ब हो जाती है, जब उनको ये पता चलता है कि स्कूल में गॉड इन स्क्रिप्चर के बारे में नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो शी फेड द डॉग. तो एक ह्यूमैनिटी को प्यार करना और उन लोगों को पसंद करना या केयर करना जिनको केयरिंग की ज़रूरत है. सो समवेयर इट शोज दैट येस, शी वॉज वेरी जेनरस काइंड ऑफ लेडी एंड शी वॉज डीपली रिलीजियस माइंडेड लेडी. ओके. Next question. The thought was almost revolting. What was that thought and why was it disgusting? कौन सी थॉट है जिनको सबसे ज़्यादा ग्रैंड मदर ने सबसे ज़्यादा जिसको डिस्टर्ब किया? द ओल्ड मदर often that the games is used to play as the child. It seemed unbelievable for the incident of her part. Children treated those stories. Okay. So यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाला एलिमेंट क्या है कि जब भी वो ग्रैंड मदर अपने बच्चों को बताती है, ग्रैंड चिल्ड्रन को बताती है कि दैट मैं भी जब मैं यंग थी या मैं जब बच्ची थी तो मैं इस तरह के गेम्स खेलती थी,
जैसे हमारे भी कुछ जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अगर हमारे घर में कुछ हैं तो वो अपने बच्चों से रिलेटेड, अपने चाइल्डहुड से रिलेटेड कुछ स्टोरीज हम लोगों को जब बताते हैं तो इट्स समवेयर इज़ हार्ड टू बिलीव दैट, क्योंकि हमने उनको वो चीज़ें करते हुए देखा नहीं है। और स्पेशली जो यंग चिल्ड्रंस हैं वो कहीं ना कहीं उन चीज़ को थोड़ा अब्रप्ट तरीके से बिहेव करते, रहने दो आप तो झूठ बोल रहे हो, तो इस तरह के स्टेटमेंट दे यूज टू से सम टाइम। सो दीज थिंग्स समवेयर जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको कहीं ना कहीं वो चीज़ें अनोइंग लगती हैं, वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लगता है। सो दीज काइंड ऑफ थिंग वी शुड नॉट डू। दैट मीन्स एक तरह से एक लेसन पढ़ाया जा रहा है, एक लेसन सिखाया जा रहा है टू द ग्रैंड चिल्ड्रन, दैट you should respect your grandparents, you should respect the you should respect every thought process, you should respect every story whatever they told to you about their past life or about their experience in their life. So we should respect that things and we should learn some things from that stories, instead of we start making fun of it and we start believing that no, this is just a fumble you are doing. So these kind of things we get to know about the grandparents from this story. So somewhere it is a kind of lesson we get to know. एक थीम भी आप इसको बोल सकते हो कि एक्चुअली एक थीम क्या है, कि जो खुशवंत सिंह है वो ये बताना चाहते हैं कि वी शुड रिस्पेक्ट द थॉट प्रोसेस, वी शुड रिस्पेक्ट द एक्सपीरियंस ऑफ आवर ग्रैंड पेरेंट्स। क्लियर? So you have to do all these questions in your fair notebook, and I hope you clearly understand the story. Okay, thank you.